Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. I am Mohit Khanna and in this video I am going to start current affairs of September 2020 part 1. So let's talk about the current affairs. So these are current affairs important for UPSC, Punjab PCS, banking, SSC and various state and the central government jobs. Okay. Before going to start, I just want to say that we are going to introduce new courses ऑन माई ऐप पिनेकल स्टडी ग्रुप। पिनेकल स्टडी ग्रुप ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये ऐप एंड्रॉयड एंड एप्पल दोनों के लिए अवेलेबल है। 7 सितंबर को हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट है, 7 सितंबर को पॉलिटी की, 7 सितंबर को इकोनॉमी की। करंट अफेयर्स यूपीएससी फॉर 2021 एस्पिरेंट प्रीलिम्स फॉर एंड मेंस बोथ एंड करंट अफेयर्स 30 डेज का क्रैश कोर्स है, 6 सितंबर से स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है एंड दीज ऑल आर लाइव क्लासेस और प्लस recorded classes. Okay, so these are very nominal classes. Is there any issues? Kindly call or WhatsApp on this number for any assistance. So let's start with the current affairs of September 2020 part 1. The first is Madhya Pradesh government launch Gandagi Bharat Chodo campaign. शिवराज चौहान MP मध्य प्रदेश के CM है। Madhya Pradesh government has launched a 15-day campaign named Gandagi Bharat Chodo, and the under the campaign awareness program was organized in 7,178 settlement. Okay, 7,178 settlement में ये campaign launch किया गया and about 35 lakh people from 378 urban bodies in Madhya Pradesh took part in this campaign. और राइट नाउ द सीएम है वहाँ पर शिवराज चौहान और एमपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ओके, तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये। गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन स्टार्ट इन द मध्य प्रदेश। सेकेंड, ये सिविल सर्विसेज के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड मिशन करम योगी मिशन अप्रूव कर लिया गया है कैबिनेट ने और उसके अंदर द प्रोग्राम फॉर द सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। The Union Cabinet has approved the launch the Mission Karam Yogi, which is a national program for civil services capacity building, and sum of rupees 510 crore will be spent of a period of 5 years from 2020 to 2021 to 2024 to 2025। तो 2020 से लेकर 2025 तक लगभग 500 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा टू अराउंड 46 lakh central employees के। And Mission Karam Yogi has been launched to prepare the Indian civil servant for future by making him more creative, constructive, imaginative, innovative, proactive, professional, progressive, energetic, enabling, transparent and technology enabled। तो ये सारे लोगों को जितने भी सिविल सर्वेंट हैं उनको इस पर्सपेक्टिव से क्रिएट किया जाएगा और and through this the civil servant will be empowered with the specific role competencies and also able to ensure efficient service delivery for high quality standard। Okay, so this is the union cabinet approved the national program for civil services capacity building mission karam yogi। नेक्स्ट है इंडिया रैंक 48। तो इंडिया का रैंक आया 48 इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। 2020 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक है 48। इंडिया हैज़ ज्वाइंड द ग्रुप ऑफ टॉप 50 कंट्रीज इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार हम टॉप 50 में आ चुके हैं विद द 48 रैंक एंड मूविंग अप 4 प्लेसेस 48 रैंक एंड कीपिंग द टॉप पोजीशन अमंग द नेशन इन सेंट्रल एंड द साउथ एशिया। क्लियर, 52 से हम 4 प्लेसेस और ऊपर आ गए। नाउ इंडिया बिकम 48th कंट्री एंड इंडिया रैंक इन द टॉप 15 इन इंडिकेटर सच एज ICT which is a information and communication technology services, exports, government online services, graduate in science and engineering and research and development intensive global company। ओके, और जो टॉप पे है हमेशा आपको पता है ये स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके एंड नीदरलैंड। So these top 5 positions are dominated by the high income countries because it's a global innovation। तो टॉप पे है स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम एंड नीदरलैंड। एंड द 13th एडिशन इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 2020 का ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये 13th एडिशन है,
हैज़ जॉइंटली रिलीज्ड बाय, अब इसको रिलीज़ किसने किया, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको रिलीज़ किया गया वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन प्लस कॉर्नेल यूनिवर्सिटी प्लस इनसीड बिजनेस स्कूल। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन से ये रिलीज़ किया गया हुआ है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड द इनसीड बिजनेस स्कूल। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट करंट अफेयर ये है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो हर साल वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालता है, उसको सस्पेंड कर दिया गया बाय द वर्ल्ड बैंक। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट सस्पेंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हैज स्टॉप्ड द पब्लिकेशन ऑफ द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट टू प्रोब, अब प्रोब किया गया हुआ है टू डाटा कलेक्शन इरेगुलरिटी इन द एनुअल रैंकिंग ऑफ कंट्री बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। ओके, तो एनुअल रैंकिंग निकाली जाती है उनके बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें सब इरेगुलरिटीज फेस हुई है, तो दैट्स वाई वर्ल्ड बैंक स्टॉप। एंड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, a number of irregularities have been reported regarding change of data in doing business 2018, doing business 2020 reports and published in 2017 and 2019. And World Bank would conduct a systematic review of data change in the last 5 doing business report, and independent auditors will probe data collection and the review process. Okay, तो ease of doing business report suspend हुई है सर। एंड द लास्ट डूइंग रिपोर्ट, जो लास्ट हमारी ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट थी जो अक्टूबर 2019 में पब्लिश की गई थी, उसमें इंडिया का रैंक था 63। ओके, तो उसमें इंडिया का रैंक था 63। इंडिया ने बहुत अच्छा अचीव किया, फ्रॉम द 100 से डायरेक्ट 63 पे बहुत इजीली, बहुत जल्दी जल्दी अचीव किया। और उसमें न्यूजीलैंड ने टॉप किया था 2019 में जो रिलीज हुई थी। और राइट नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इज डेविड मालपास। ओके, तो मालपास अभी प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसकी फाउंडेशन रखी गई थी जुलाई के 1944 में। जुलाई के 1944 में इसकी फाउंडेशन थी। डेविड मालपास इज राइट नाउ द प्रेसिडेंट। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर है, राजीव कुमार टेक्स चार्जेस एज ए न्यू इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमीशन की बात करें, इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। एंड राजीव कुमार हैज़ टेकन न्यू इलेक्शन कमिश्नर, तो राजीव कुमार उसमें एक इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। ही हैज़ जॉइन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है वो इस टाइम पर कौन है, सुनील अरोड़ा जी। सुनील अरोड़ा, ही इज़ राइट नाउ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुशील चंद्रा। तो दोनों, अब एक तो है सुशील, ऊपर है सुनील, और नीचे है सुशील प्लस राजीव कुमार। ओके, and Rajiv Kumar is a 1984 batch IAS with more than 36 years of Government of India service. He has very rich work experience over various sectors like social sector, environment, forest, human resource, finance and the banking sector. तो ओके, तो इसलिए इनको काफ़ी हाईली एक्सपीरियंस होने के कारण इनको राजीव कुमार जी को नए इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट, अ न्यू बुक टाइटल लेट अस ड्रीम बाय द पोप फ्रांसिस। तो पोप फ्रांसिस जी ने, जो पोप है फ्रांसिस, इन्होंने एक नई बुक रिलीज की है, लेट अस ड्रीम। लेट अस ड्रीम द पाथ टू बेटर फ्यूचर, द पाथ टू बेटर फ्यूचर, लेट अस ड्रीम। Pope Francis is set to release a book, Let Us Dream, in December 2020. In this book, Pope Francis explains how a crisis can teach an individual to deal with problem they face in their lives, and he cites, इन्होंने क्या चीज़ साइट की है, 3 मेजर क्राइसिस फॉर देयर ऑन पर्सनल लाइफ। और इन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में जो 3 मेजर क्राइसिस उनको जो देखनी है उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में, उनको भी इन्होंने वहाँ पर इसमें मेंशन किया गया हुआ है। द बुक विल बी आउटकम ऑफ न्यूमरस एक्सचेंज बिटवीन पोप फ्रांसिस एंड हिज बायोग्राफर ऑस्टीन इवरे। तो ये उनके बायोग्राफर है। एंड इन द वीक फॉलोइंग द कोरोना वायरस आउटब्रेक अराउंड द वर्ल्ड। ओके, लेट अस रीड। नेक्स्ट, लेबानन, जो बहुत न्यूज़ में था। मुस्तफ़ा अदीब, ही बिकम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लेबानन, क्योंकि वहाँ पर बस्ट के कारण, ग्रेनाइट सॉरी बस्ट के कारण जो वहाँ पर हुआ था, तो उसके कारण वहाँ के पूरी की पूरी पार्लियामेंट ने, कैबिनेट ने रिज़ाइन कर दिया था। तो लेबानन एम्बेसडर टू जर्मनी, जो लेबानन के एम्बेसडर, जर्मनी के एम्बेसडर है फ्रॉम द लेबानन टू जर्मनी, मुस्तफ़ा अदीब, he become the new prime minister in the crisis hit Lebanon. Adib, who has been in Beirut Berlin envoy since 2013, is affiliated with the small Sunni party headed by the former Prime Minister Najib Mikati. तो अब बने हैं मुस्तफ़ा अदीब।
डे आफ्टर द ब्लास्ट द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर हसन जाब अ सेल्फ स्टाइल्ड टेक्नोक्रेट स्टेप डाउन। ओके, तो उनके प्राइम मिनिस्टर थे हसन दायब, HASSAN, हसन दायब। ही स्टेप डाउन एंड नाउ बिकम मुस्तफा अदल। And President Michel Aoun asked Lebanon ambassador to Germany, Mr. Adi, to form a new government after he secured 90 votes in a 128-member parliament. Okay. नेक्स्ट है अवीक सरकार बिकम न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई के नए चेयरमैन बने हैं अवीक सरकार। अवीक सरकार बिकम न्यू चेयरपर्सन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। द एडिटर एमरिचियस एंड न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ आनंद बाजार ग्रुप पब्लिकेशन अवीर सरकार हैज़ been इलेक्टेड एज ए चेयरपर्सन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आनंद बाजार पत्रिका हुआ करती थी, तो आनंद बाजार ग्रुप पब्लिकेशन, एंड ही सक्सीडेड विजय कुमार चोपड़ा द चीफ एडिटर ऑफ द पंजाब केसरी ग्रुप ऑफ द न्यूज़पेपर। और पीटीआई हेडक्वार्टर है राइट नाउ न्यू दिल्ली में, और इसकी फाउंडेशन रखी गई थी आज़ादी के थोड़े दिन के बाद, तो 27 अगस्त 1947 को। ठीक है, 12 दिन के बाद रखी गई थी इसकी फाउंडेशन, अवीक सरकार। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट ऑफ द सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद द पार्ट सेकंड। ओके, तो ये था हमारा इस वीडियो में पार्ट 1 करंट अफेयर्स से थोड़े से हमारे सितंबर के। बट इफ़ यू वांट टू कवर मोर कंटेंट, अगर आप यूपीएससी की प्रॉपर प्रिपरेशन चाहते हो तो गो विद द पिनैकल स्टडी ग्रुप ऐप। देयर आर लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों अवेलेबल होती हैं वहाँ पर। ओके, एंड वेरी नॉमिनल कोर्सेज, एंड उसके बहुत कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल होती हैं, 1000 2000 3000 के प्रॉपर कोर्सेज चलते हैं। तो काइंडली डाउनलोड ऐप, और ऐप का आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर एनी असिस्टेंट कॉल एट दिस नंबर और व्हाट्सएप एट दिस नंबर 7341188180। तो ये था हमारी इस वीडियो में। थैंक यू।